اور جس طریقے سے شاہدہ جبین صاحبہ نے بات کی کہ انہوں نے جس طرح سے بات کی کہ ہمیں زبان دی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج ہم جس کتاب کی یہاں لانچ کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں فرخندہ بخاری صاحبہ کی، گو آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اس کتاب کی شکل میں جس کے اقتباس یہاں پڑھے گئے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، اس کتاب کی رونمائی کے لیے میں یہاں آئی ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیومن رائٹس سیل نے اس ذمہ داری کو اپنے سر لیا، اور آج اس لاہور شہر میں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، اس شہر کے اندر ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پولیٹیکل ورکر کی کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے جو کہ جن کی کہانی اس میں بھی درج ہے، اور ہم نے ان کی بیٹی سے بھی سنا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، میں نے فیصل سے کہا آپ نے میرا بھی وقت لے لیا ہے سارا، سو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو اسپیک فار 2 minutes بیکاز انہوں نے اقتباس جو پڑھے میں خود سن رہی تھی بہت غور سے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے بعد زیادہ بات کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ہم یہاں اکٹھا ہوئے، یہ اس محفل کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پولیٹیکل ورکرز موجود ہیں. بڑی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی جو سیاست کو گالی میں تبدیل کرنا کچھ لوگ چاہتے ہیں، اور بار بار سیاست کو حقارت سے دیکھنا چاہتے ہیں اور حقارت سے یاد کرنا چاہتے ہیں. یہی بدقسمتی ہے اس معاشرے کی، یہی بدقسمتی ہے پاکستان کی، اور یہی ایجنڈا ہے ان انڈیموکریٹک فورسز کا جو آج بھی سیاسی کارکن کو حقارت سے دیکھنا چاہتے ہیں اور حقارت سے ان کی بات کرنا چاہتے ہیں. اس خوبصورت محفل میں موجود وہ تمام لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ سیاست عبادت ہے، سیاست قربانی ہے، سیاست شاہدہ جبین ہے، سیاست فرخندہ بخاری ہے، سیاست فیصل میر ہے، سیاست شازیہ مری ہے، اور سیاست فرت اللہ بابر ہے. تو یہ کوئی گالی نہیں ہے. ہمیں یہی میسج آگے بڑھانا ہے اپنے بچوں تک، اپنی نسلوں تک. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب چترال میں ہیں. وہ خیبر پختونخوا کے دورے پر ہیں. وہاں مختلف کنونشن سے، ورکرز سے انہوں نے خطاب کیا ہے، اور ایک ہی بات وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں بہتری اور ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. ہماری لڑائی کسی شخص سے نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. اس ملک میں غربت سے ہے، اس ملک میں بے روزگاری سے ہے، اس ملک میں مہنگائی سے ہے، اور ہم آواز ہیں اس ملک کے نوجوان کی، ہم آواز ہیں اس ملک میں انسانی حقوق کی، اور ہم آواز ہیں اس ملک میں آئینی اور جمہوری حقوق کی. تو لہٰذا ہمیں، میرا یہ خیال ہے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ یہ بات کرے تو پھر کسی بھی جماعت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو روز پریس کانفرنسز کر کے کبھی ایک ہمیں اعلان سنائی دیا ابھی کچھ روز قبل کہ جی بات ہو گئی ہے، بات ہو گئی ہے. ارے بھائی بات کس سے کی ہے؟ عوام سے کرو بات، کسی اور کا لاڈلا نہ بنو، عوام کا لاڈلا بنو. اگر کسی کی سپورٹ چاہیے تو وہ پاکستان کی عوام کی سپورٹ لو. ہم تیار ہیں خون دینے کے لیے، ہم تو خون ہی دینے کے لیے بنے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا، ان کی آنکھوں کے تارے، ان کی اولاد سب نے قربانی دی، ان کی بیٹی، ان کے کارکنان، ان سے جڑے ہوئے ہر شخص نے قربانی دی. اپنے لیے نہیں دی، اس ملک میں جمہوریت کے لیے دی. تو قربانیاں تو ہم دے رہے ہیں، قربانیوں کو رائیگاں مت کرو، قربانیوں کی تذلیل مت کرو، قربانیوں کو گالی مت دو. بات ہو
किससे बात हुई है? किसी अवामी नुमाइंदे से बात हुई है? किसी मोहल्ले में कॉर्नर मीटिंग में लोगों ने आपको बता दिया है कि आप वजीर आजम होंगे? किसी छोटे मोटे मीनारे पाकिस्तान में किए हुए जलसे में आपको पता चल गया है कि आप वजीर आजम होंगे? क्योंकि वहां आपने इलेक्शन की बात नहीं की, वहां आपने इलेक्शन का जिक्र भी नहीं किया, जो कि बुनियाद है जमहूरियत की, जो कि बुनियादी इंस्टीट्यूशन है जमहूरियत का, जिससे आज आप घबरा रहे हैं। मत घबराएं, क्योंकि हम तो तब भी नहीं घबराए थे जब बेनजीर शहीद को हम लाड़काना लेकर जा रहे थे। हम तो तब भी इलेक्शन से नहीं घबराए थे। आप घबराए थे उस वक्त भी इलेक्शन से। आपने कहा था इलेक्शन मत कराओ, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने कहा था कराओ इलेक्शन, क्योंकि पाकिस्तान खपे। तो आज लाहौर के लोगों को यह फैसला करने का हक होना चाहिए कि उन्हें किसे वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाना है। आज पंजाब के लोगों को, सिंध के लोगों को, बलोचिस्तान के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, आजाद कश्मीर और गिलगित के लोगों को यह हक मिलना चाहिए, जिसको चाहे वो इक्तदार दे और वजीर आजम बनाए। ये उनका हक है। ये उन, जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं, it is the right of the people who have to be governed, who they choose as their representatives. It's the chosen representatives of the people, जो पाकिस्तान के आईन में भी लिखा है कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे। तो भैया, बात जिससे भी तुम्हारी हुई है, हमारी बात है अवाम से, और हम करेंगे अवाम से बात, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी है अवाम का लाडला। तो अब ये लाडला खेल बंद हो, ये लाडला लाडला बहुत हो गया। हमें तकलीफ होती है जब शाहिदा जबीन अपनी कहानी अपनी जबानी सुनाती हैं, जब मकसूमा साहिबा अपनी वालदा के साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र करते हुए अपने ऊपर गुजरने वाली तमाम तर तकलीफें बताती हैं। शाहिदा जबीन की 5 माह की बच्ची को 1 साल की सजा होती है जमहूरियत के लिए। तो बात हो गई है, अपनी जेब में रखो। ये इस तरह के बयानात और इस तरह के इशारे बार बार मुल्क को पीछे धकेलते हैं। हम कोई गिरी पड़ी कौम नहीं है, हम बड़ी बहादुर कौम है, हम बड़े रिजिलियंट लोग हैं। हमने 4 डिक्टेटर भुगताए हैं, हमने जलजले भुगताए हैं, हमने जंगें भुगताई हैं, हमने कोड़े देखे हैं। 4 जर्नलिस्ट को भी कोड़े लगे थे। आज मीडिया कम्युनिटी भी यहां मौजूद है। जनरल जिया के कोड़े आपके उन इनकलाबी जर्नलिस्ट को भी लगे थे, जिनकी आवाजें आज आपके कानों में भी गूंजती होंगी। तो आपको भी ये स्टेटमेंट्स हजम नहीं होंगी, किसी को ये स्टेटमेंट हजम नहीं होगी। मैं सिर्फ क्योंकि मेरी जमात ने हमेशा इखलाक से बात करने का दर्स दिया है, हमें कभी गालम गलोच पर हमारी जमात ने ना उकसाया है ना ट्रेनिंग दी है। हम बात भी तरीके से तमीज से करेंगे और हम जमहूरी अपनी रिवायात को एक्सरसाइज करेंगे। हम समझते हैं कि हम किसी की भी साथ होने वाली ज्यादती पर आवाज उठाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ होने वाली ज्यादती पर आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत अवाम का हक है, पाकिस्तान में तरक्की अवाम का हक है, पाकिस्तान में रोजगार अवाम का हक है, पाकिस्तान में महंगाई खत्म करना अवाम की आवाज है, अवाम की डिमांड है। लिहाजा अब मैं समझती हूं कि आप लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप लोग सफीर हैं जमहूरियत के। आप लोग बड़े मैं तो जिस तरह के लोग यहाँ सामने बैठे हैं, मुझे बखुदा शर्म महसूस होती है कि मैं स्टेज पर हूँ। मैं मतलब शायद स्टेज एक है, शायद हम सबको इकट्ठा बैठना था, लेकिन जिस तरह के लोग ऑडियंस में हैं, ये नगीने हैं, ये एसेट्स हैं। ये वो एसेट नहीं है जो किसी गोगी ने बनाए,
और किसी के लिए बनाए। ये वो एसेट है जो बड़ी खुशकिस्मती होती है उन लोगों की जिनके साथ होते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसी आइडियोलॉजी से जुड़ी हूं जिसमें सब कुछ साफ लिखा है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम कोई यू टर्न्स नहीं लेते। हमें पता है हम किस रास्ते पर हैं, हमें पता है हमने कौन से कांटों का ताज पहना हुआ है, हमें पता है हमारे सामने क्या रुकावटें हैं। इसीलिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, और यह भी किसी को बुरी लगती है। तो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते, हर पाकिस्तानी शहरी के लिए मांगते हैं, हर सियासी जमात के लिए मांगते हैं। अगर आपके लिए रेड कार्पेट बिछाए तो 100 बिस्मिल्लाह, आपको मुबारक हो। हमें तो सिर्फ इलेक्शन चाहिए, उसका शेड्यूल चाहिए, शफाफ इलेक्शन चाहिए, बैलेट बॉक्स की हिफाजत चाहिए। अवाम की उस वक्त जिस रोज 8 फरवरी को इलेक्शन हो, किसी पाकिस्तानी को यह ना लगे, एक तो यह ना लगे कि क्या इलेक्शन होगा, क्योंकि यह अफसोस की बात है, और दूसरा ये उन्हें तकलीफ ना हो या ये खदशा ना हो कि क्या हम वोट डाल सकते हैं। ये मैं समझती हूं अफसोसनाक लम्हे हैं किसी भी जमहूरी या जमहूरी कारकुन के लिए या उस शख्स के लिए जो पाकिस्तान में जमहूरियत का ख्वाब देख रहा है। अच्छी बुरी जमहूरियत नहीं होती, जमहूरियत होनी जरूरी है। अब जमहूरियत को कितना ज्यादा हम मजबूत कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हमें उम्मीद हारने की जरूरत नहीं है, हमें मायूस होने की भी जरूरत नहीं है। जिस आइडियोलॉजी या जमात के पास ऐसे खूबसूरत लोग हो, ऐसे बहादुर लोग हो, उससे कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान तो वो लोग हो रहे हैं जिनकी कहीं बात हो गई है, हम परेशान नहीं हैं। ये तकरीब इस लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि आजकल लोग एक बार फिर, मतलब हमें तो लगा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक जमहूरियत के बाद चोर दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि यही हमारा इरादा था और यही तहिया था। बड़ी बदकिस्मती है कि हमें आज भी वो दरवाजे कहीं ना कहीं कोई कुंडी खुली नजर आती है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में तमाम इदारे अपनी आईनी जिम्मेदारी एंड आइन में दर्ज जो मौजूद है अल्फाज, उनके तहत निभाएं। अपनी इज्जत, अपना वकार, जो उनका आइन में काम है उसको करेंगे तो वो बरकरार होगा, उनकी अवाम में भी मकबूलियत होगी, उनकी पाकिस्तान से बाहर भी पजीराई होगी। लेकिन जब जब इदारे अपने दायरों से बाहर निकले हैं, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, आइन को नुकसान हुआ है, अवाम को तकलीफ हुई है, और मुल्क से बाहर इस मुल्क की तजलील हुई है। लिहाजा सिर्फ छोटा सा नुस्खा है। पाकिस्तान में 1973 का आइन है, उस आइन को फॉलो करें, जमहूरियत को मजबूत करने में अपना अपना हिस्सा डालें, और हमारे लिए सब इदारे काबिल इज्जत हैं, हमारी किसी इदारे से दुश्मनी नहीं। जैसे मैंने कहा, हमारी दुश्मनी उन मसाइल से है, हमारी जंग उन मसाइल से है जिसके लिए बिलावल साहब कहते हैं हम 3 जनरेशन से हम लोग लड़ रहे हैं। आज भी मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान, आज भी। तो क्या वजह है हम आगे नहीं बढ़ रहे? क्यों? ये सोचने की जरूरत है। आज भी अगर किसी का कहीं सौदा हो गया तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। लिहाजा हर जमहूरी कारकुन का ये फर्ज है, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता है, आइए मिलकर पाकिस्तान में तकसीम का खात्मा करें, आइए मिलकर पाकिस्तान से नफरत को मिटाएं, आइए मिलकर पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करें, आइए मिलकर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का बोल बाला करें, और तभी जाकर पाकिस्तान का बोलबाला होगा। आपका बहुत शुक्रिया सबका। मैंने जैसे कहा कि फैसल ने वो तमाम बातें की जो शायद मैं करती, लेकिन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बाबर साहब की तकरीर।